Yeah. So, good evening, everyone. So, we are on this amazing journey of The Secret, which is telling us how we use this law of attraction and manifestation to attract our dreams and desires. So, we are just left with the summaries of The Secret to Health. Okay. So, we'll read that after we do the warm up, and then move on to the next chapter. Okay. So, let's start with the warm up. Please unmute yourself and switch on your cameras. Yeah. तो both the sisters are together and it's seeming lot of fun. कभी इनको ये Yes. दोनों जन इस फ्रेम में देखते हैं, दोनों जन उस फ्रेम में देखते हैं. It's wonderful. Yeah. Wonderful. Okay. So one, two, three, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and Fingers and 1 one little little nose. nose. 10 little 10 fingers, little 10 little fingers, toes, 2 two little ears little and one little nose. Amazing, amazing. Yeah. ears. So who wants to read today? Kavita ji, if you are free, I would like that you read. You read very nicely. Sure, I'll do it. Not a You're free? problem. Yeah. 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 Okay. Okay. I'll just share the screen. Yeah. I think there's some fan noise or something. You just please like. Yeah. I'll just go in a room so it will Hmm. be okay for. No, I don't want to disturb you. Okay, but if No, you're it's free, okay. comfortable. Yeah. It's okay. It's okay. तो कल हमने सीखा कि कैसे हमको आइडियल स्टेट वो परफेक्शन की बात समझ सोचनी है. उसके बाद हमको हमारा फोकस रखना है. वी हैव टू विजुअलाइज एंड देन वी ओनली हैव टू थिंक अबाउट परफेक्शन. ओके. सो एम आई ऑडिबल? Yeah. या. ओके. Secret summaries. The placebo effect is an example of the law of attraction in action. When a patient truly believes the tablet is a cure, he receives what he believes and is cured. या. प्लेसिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है. जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है, तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है. वी हैव सीन दैट व्हेन वी बिलीव इन समथिंग. ओके. इट कैन बी शुगर पिल. इट कैन बी सम आशीर्वाद ऑफ सम भगवान जी. इट कैन बी सम प्रसाद ऑफ सम मंदिर. Okay, or it can be just doing a darshan to Bhagwan ji. So placebo effect is just that, like if what we believe in is what we are going to receive. Yeah. Focusing on perfect health is something we can all do within ourselves, despite what may be happening on the outside. या. संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है. इट्स लाइक नो मैटर व्हाट आवर हेल्थ सिचुएशन इज, व्हाटएवर ब्रेकडाउन वी मे बी हैविंग. ओके. बाहर के लोग, हमारे आजू बाजू के लोग कुछ भी बोल रहे हैं. ओके. कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है. बट हमको हमारा फोकस परफेक्शन पे रखना है, उस परफेक्ट हेल्थ पे रखना है. ओके. एंड इट इज वेरी इजी कि बाहर कुछ भी हो रहा है, वी कैन जस्ट क्लोज आवर आईज एंड जस्ट just think of whatever happy thoughts we want to have. Yeah. Laughter attracts joy, releases negativity, and leads to miraculous cures. या. हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है. सो लाफ्टर इज अमेजिंग. ओके. सो लाफ्टर इज समथिंग विच विल ब्रेक any kind of a barrier. Okay. So what we have to do is we have to make it a point that we are laughing at least once every day, at least once. ओके. और अगर आप चाहते हैं कि कोई मिराकुलस रिजल्ट्स हो इन योर हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स और जॉब, करियर, जिसमें भी, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें ऐसी करनी है व्हिच मेक्स यू लाफ. क्या. Disease is held in the body by thought, by observation of the illness, and by the attention given to the illness. If you're feeling a little unwell, don't talk about it unless you want more of it. Unless you want more of it. If you listen to people talk about their illness, you add energy to their illness. Instead, change the conversation to good things and give powerful thoughts to seeing those people in health.
या हमने कल ये भी बात की कि कोई और अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा है तो हमको उसकी बातें पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना इन द सेंस लाइक वी आर नॉट टू कंट्रीब्यूट टू दैट कॉन्वर्सेशन, वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट देम, टॉक अबाउट समथिंग मोर पॉजिटिव, और इफ वी कांट डू दैट वी हैव टू लीव फ्रॉम दैट प्लेस एंड गिव देम आवर ब्लेसिंग्स एंड जस्ट गिव देम मोर गुड फीलिंग्स। या तो बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात ना करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना ना चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी की विस्तृत वर्णन सुनते हैं तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल पैराग्राफ। हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, तो आप इसको फिर से पढ़िए एंड ट्राई एंड फाइंड योर वे कि कैसा आपको बिहेव करना है इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट देयर इलनेस, या जब आपको भी कुछ, जैसे वो कह रहे हैं कि आपको कोई छुटपुट माइन्यूट सी कुछ चीजें हों उसके बारे में बात नहीं करना है। ओके, अनलेस वी वांट मोर ऑफ दैट इन आवर लाइफ। या Beliefs about aging are all in our minds. So release those thoughts from your consciousness. Focus on health and eternal youth. या बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। इट्स लाइक व्हेन वी से कि अरे एज हो गई है तो मेमोरी लॉस हो रहा है, एज हो रही है तो यहाँ दर्द होएगा, एज हो रही है तो स्किन सैग करेगी, एज हो रही है तो हेयर ऐसे होंगे, नहीं, उन सब के बारे में हमको बात नहीं करनी है। द मोर वी टॉक अबाउट इट, द मोर वी थिंक अबाउट इट, द मोर वी आर अट्रैक्टिंग दैट in our life. So whatever we are attracting is only because of our thoughts. Okay, so aging is just that, whatever preconceived notions we have in our mind, that is what we attract, as in when we are getting more experienced. Yeah. Do not listen to society's messages about diseases and aging. Negative messages do not serve you. या बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। ओके, सो इट्स लाइक टेलिंग अस दिस ओनली दैट वी हैव टू बिकम लाइक गांधी जी तीन बंदर। ओके, ना हमको बुरा सुनना है, ना हमको बुरा देखना है, और ना हमको बुरा बोलना है। जैसे जैसे हम लोग ये बातें करेंगे, बुरा इन द सेंस लाइक नेगेटिव थिंग्स, इफ यू आर टॉकिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग और सीइंग, हम आप उसको वैसे ही लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आप बताइए, आपको नहीं लगता है कुछ, आप कोई भी हेल्थ अपनी कोई बात बताता है तो हम लोग उसको इमेजिन करने लग जाते हैं, है ना? सो व्हेन वी आर लिसनिंग टू दोज थिंग्स वी आर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ। ये हमने कल बहुत अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ा है, तो हमको बिल्कुल ऐसे ही करना है दैट व्हाटएवर वी आर सीइंग और anything negative that we are coming across, we are not to pay attention to that. Okay, so we'll start off with the next chapter. Sonia ji, you want to add something about the placebo effect? या आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में यही बताया ना कि अगर किसी को बताया जाए कि अच्छा तुम ऐसा खाओ, ऐसा करोगे तो ठीक हो जाएगा। आई हैव लाइक मेरी ग्रैंड मदर, मैंने मेरे पापा बताते हैं जब से उन्होंने अपनी समझ पकड़ी तब से ही हैज सीन हर, उनको ये है दिमाग से कि वो तो हमेशा ऐसी रहती है, मतलब कि उनके कभी यहाँ है, कभी यहाँ कुछ है, कभी उधर कुछ है। और हमारे फैमिली डॉक्टर थे, हमारे बिल्कुल मतलब कि हमारे घर के बिल्कुल बिल्कुल बगल में हॉस्पिटल था और वो उनकी परमानेंट कस्टमर थी, आप ये समझ लीजिए। लेकिन वो क्या करते थे ना, इतने क्यूट डॉक्टर थे, माँ जाते थे उनके पास और वो कि गोपाल बाबू मेरे तो यहाँ पे ऐसे हो गया, आज यहाँ पे ऐसे हो गया, वहां पे ऐसे हो गया, और वो उनको कुछ भी बिना, मुझे आज भी याद है, वो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं और नीचे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। और मैं ये सोचती थी कि बिना देखे क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, पक्का ये उल्लू बना रहे हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि वो माँ की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ चुके थे और मुझे लगता है वो उनको कोई नन्ही मुन्नी दवाई देख के खुश कर देते थे और माँ एक दिन के लिए ठीक भी हो जाया करते थे। तो आई थिंक वो है ना प्लेसिबो इफेक्ट वहाँ माँ के ऊपर ठीक काम करता था और इनफैक्ट आज भी उनका वही हाल है। बहुत मिस करती हैं वो अपने डॉक्टर को, अभी तो खैर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। बट हाँ, और दूसरा आपने जो ये बोला ना
कि जवानी कितनी भी उम्र हो जाए बट आपका वो जो यंग एज वाला स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता है, वो वाकई में नहीं होता। मेरे हस्बैंड बताते हैं उनके ग्रैंडफादर 75 की एज में भी वो अखरोट जो होता है ना, वॉलनट हाँ शेल वाला, वो कहते हैं वो दांत से तोड़ लिया करते थे। हम लोगों से तो हथौड़े से ना टूटे वो आराम से, मतलब कि इट इज अ स्ट्रगल टू डू दैट। यार देखे बट कि हाँ, वो अभी भी ऐसा भी लोग हैं जो आसानी से वो काम कर लेते हैं जो जनरल पीपल नहीं कर पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट हियर कि आप क्या कर यस, सकते हो क्या नहीं कर तो सकते। कितना अच्छा है सोनिया, यू हैव एन एग्जाम्पल। तो आप उनको देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि अरे कि ओल्ड एज होगे तो सारे दांत टूट जाएंगे। ओके, तो वो आपको दिख रहे हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, अरे ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज लाइक अ वंडरफुल थिंग। सो इफ यू हैव एन एग्जाम्पल अराउंड यू, यू शुड बी गेटिंग मोर इंस्पायर्ड एंड यू शुड बी गिविंग मोर ग्रेटिट्यूड कि यस इनके दांत इतने स्ट्रांग है, थैंक यू, मेरे भी दांत इतने स्ट्रांग है। ओके, तो ऐसे हमको इंस्पायर होना है कि जो भी दिख रहा है इस टाइप का, so we have to get more inspired and be more grateful so that we attract such perfection in our life. Okay, so thank you for your wonderful sharing and I'm sure आप भी ऐसे ही सोचेंगे कि yes you are perfect, everything is wonderful in your life and health also. Okay, so ये yes अभी मैं Kavita, भी बताना चाहूंगी। हाँ अभी बोलिए। आपने कहा कि एज हमारा वो करता दिमाग पे रहता है। हम्म मेरे घर पे मेरी मतलब बुआ दादी हैं, मेरे पापा की बुआ जी हैं, वो हम्म शी इज 107 ईयर्स ओल्ड एट प्रेजेंट, और वो आज तक अपना सारा काम खुद से कर रही हैं। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड मतलब उनका फूडिंग वगैरह वो अपना, मतलब जैसे कपड़े वो अपने खुद से धोती हैं, चलना फिरना तो किसी का अलाउ ही नहीं करती कि मेरे कपड़े कोई धोएगा, नहीं मैं खुद से धोऊंगी। हाँ हाँ, लाइक ओके, दिस। वेरी नाइस। अब मेरे को इससे याद आया कि देयर वाज अ someone in this group only, दीपिका जी, she had also shared her दादी सास's वीडियो। हाँ, कि कुछ गाने का सॉन्ग था एंड शी वाज डांसिंग आल्सो ऑन दैट, आई रिमेम्बर दैट। उन्होंने मैजिक सेशन में थी वो, और आई एम नॉट श्योर मे बी पावर सेशन में भी थी। तो उन्होंने वो शेयर किया था वीडियो कि लाइक एज इज जस्ट अ नंबर, वो आपको कुछ, एंड शी वाज लाइक बहुत अच्छी, आई थिंक उन्होंने, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने वीडियो शेयर किया था, ग्रुप में शेयर किया था उन्होंने, एंड शी वाज आल्सो लाइक आई थिंक अ लिटिल सीनियर, एंड वो पूरा डांस में मस्ती एवरीथिंग। सो वो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एज हो गई तो ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। Okay, so thank you, and yes, we should also feel like that, and when they are enjoying life, we should encourage them a little more. Okay, so thank you for your sharing, Aditi ji. Yes, Kavita ji, let's continue with the secret to the Yeah. world. Yeah. The secret to the world. Lisa Nicholas. People have a tendency to look at the things that they want and say, yes, I like that, I want that. However, they look at the things that they don't want and they give them just as much energy, if not more, with the idea that they can stamp it out, they can eliminate it, obliterate it. In our society, we have become content with fighting against things, fighting against cancer, fighting against poverty, fighting against war, fighting against drugs, fighting against terrorism, fighting against violence. We tend to fight everything we don't want, which actually creates more of a fight. या तो अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। तो अब क्या है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं कि हम तो खुश हो जा रहे हैं, हम हैप्पी हो जा रहे हैं, बट ये दुनिया में जो हो रहा है, ठीक है, कि ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो अनरेस्ट चल रहा है, विमेन का डिसरिस्पेक्ट है, टेररिज्म है, वो कैसे अफेक्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो सब सॉरी, सबसे पहले तो मैं हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जब बोलते हैं ना लोग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले अगर हम, आप देखिए ना, ऐसे नहीं होता, ये रिपल इफेक्ट होता है। आप ग्रेटिट्यूड के बारे में सोच रहे हैं, आप अच्छी चीजें सोच रहे हैं, तो आपकी फैमिली थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस होती है, राइट। जब वो आपको देख रही है कि यस यू आर अट्रैक्टिंग सच अमेजिंग थिंग्स बाय बीइंग पॉजिटिव, बाय बीइंग इन अ हैप्पी स्टेट, बाय बीइंग इन ग्रेटिट्यूड, वो थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं, एंड व्हेन दे गेट इन्फ्लुएंस दे विल आल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लिटिल बिट। जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जहाँ जा रहे हैं वो भी वहां पे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या तो अगर हम ऐसा सोचें तो धीरे धीरे आप ये पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड की अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो मैनिफेस्टेशन का जो पावर है, वो दूसरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है उसके बारे में, एंड वो लोग भी उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे ही सोचें कि जैसे दुनिया में क्या हो रहा है,
आपको नहीं लगता व्हेन यू यूज्ड टू रीड द पेपर्स, आपको लगता है अरे ये यहाँ क्या हो रहा है, वो वहाँ क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा सोचते थे? न्यूज़ देखते तो यही सोचते थे। अभी आप शाहरुख खान की न्यूज़ देख रहे होंगे तो भी आपको यही लग रहा होगा। उसके पहले कोई दूसरी न्यूज़ आ रही थी तो भी आपको सुन के ये लग रहा थी कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो अब लिसा निकोल्स हमसे यही कह रही है कि जब हम इस टाइप की न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको और अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट थिंग गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, एवरीवन, यू नो, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट, ओके? उनके मन में वही बात चल रही है और हमने तो यही पढ़ा है ना, जो हमारे मन में आता है, जिसको हम एनर्जी दे रहे हैं, वो ही मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है? सो अब वेदर इट इज फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर, अगेंस्ट ड्रग्स, अगेंस्ट वायलेंस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? वेदर इट्स गुड और बैड, हमने यही पढ़ा ना, शुरू में हमने पढ़ा आई डोंट वांट टू स्पिल समथिंग ऑन माय ड्रेस। तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? उसको ये सुनता है, वांट टू पुट, आई वांट टू स्पिल थिंग्स ऑन माय ड्रेस मोर एंड मोर एवरी डे, ठीक है? तो आप सोचिए, जब एक पर्सन ऐसा थॉट सोच रहा है तो उसमें इतनी एनर्जी है। तो अगर पूरी एक सिटी उसके बारे में सोच रही है, पूरी एक कंट्री उसके बारे में बात कर रही है उस नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो क्या हो रहा है, उसको और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, वो और बड़ा हो जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट स्पाइडरमैन वाली मूवी, जिसमें उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कुछ हो जाता है और जितना ज़्यादा वो नेगेटिव होता है तो उतना वो और वो उसको और नेगेटिव बनाता जाता है। यू रिमेम्बर दैट मूवी? अभी जो लेटेस्ट आई वो नहीं, जो पहले वाली थी, जिसमें वो चर्च की घंटी बजती है तो वो उसका वो ब्लैक ब्लैक वाला जो होता है ना, वो निकल जाता है, समथिंग आई एम जस्ट फॉरगेटिंग विच। देखी तो मैंने सारी स्पाइडरमैन है, लेकिन अब कौन सी वाली ये है मेरे को नाम याद नहीं है। हाँ, नाम याद नहीं, बट ये थी ना एक मूवी। तो उसमें ये है कि जितना ज्यादा आप नेगेटिव बातें करोगे, उतना ज्यादा यू आर गिविंग फूड टू दैट वुल्फ इनसाइड यू और दैट डेविल इनसाइड यू। तो जब वो हमारे अंदर हम उसको फीड करते हैं तो वो इतना बड़ा होता है। तो जब अगर हम लोग मास में उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको कितनी एनर्जी मिल रही है और वो दुनिया में कितना बढ़ रहा है, ठीक है? तो वी टेंड टू फाइट एवरीथिंग वी डोंट वांट। तो क्या होता है, जिसके बारे में हम ऑपोजिट में बोल रहे हैं, एक्चुअल में हम उस राक्षस को, उस रावण को, रावण नहीं बोलना चाहिए, आई फील रावण हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वालिटीज, उसको और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है? तो जिस नेगेटिविटी के बारे में अपन बात करते हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, आप सोचिए सेम रूल अप्लाइज इन द वर्ल्ड ऑल्सो। अगर आप बोल रहे हो अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, अरे देखो फार्मर अनरेस्ट हो रहा है, अरे देखो टेररिज्म कितना बढ़ गया है, गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, डीजल का प्राइस 100 हो गया है, पेट्रोल तो पता नहीं कहाँ चला गया, जितना हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उतना ज्यादा हम उसको एनर्जी दे रहे हैं कि वो और बढ़े, ठीक है? तो एक्चुअली इट क्रिएट्स मोर ऑफ अ फाइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टॉक less about it. We have to focus on something nice and happy. Okay, so we'll read how this law of attraction works in the world. Yeah. Yeah. Halle Doskin, teacher and author of the Sedona method. Anything we focus on, we do create. So if we are really angry, for instance, at a war that's going on, or strife or suffering, we are adding our energy to it. We are pushing ourselves, and that only creates resistance. What you resist persists. Yes. तो जिसके बारे में क्या, sorry, हाँ please read. Carl Jung, 1875 to 1961. या तो व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, मैंने आपने देखा है कि अरे मेरे को वहां जाने का मन नहीं, तो आपको वहां पक्का जाना पड़ता है। ये सब तो हमने अपने लाइफ में देखा है कि ये सब्जी मेरे को एकदम पसंद नहीं है, तो आप देखोगे घर में हर दूसरे तीसरे दिन वही सब्जी बन रही है। हैव यू सीन दिस? ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द लार्जर स्केल ऑल्सो, कि अगर आप बात कर रहे हो कि अरे इसराइल में ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, सीरिया में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो हम लोग उसको और एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इट, whether it's good or bad, when we are thinking about it, we are क्या बोलते हैं उसको, adding fuel। हम लोग ये बोलते हैं ना, आग में घी डालना। It is actually like that. So when you're thinking about it, when you're talking about it, तो वो और चीज बढ़ती जा रही है। We are pushing ourselves and that only creates resistance. And when we resist something, it persists. Okay? तो आपको नहीं करने का मन है, but आप पूरे टाइम उसको resist कर रहे हो। आपने अपनी लाइफ में अभी तक में देखा होगा, but वो एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? It is all because of law of attraction. What you resist persist. तो आपको क्या करना है, आपके घर में कुछ भी हो रहा हो, लाइक इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, ओके, अगर आप बोलो नहीं ये सामान यहाँ नहीं छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, माने आप अपनी एनर्जी उस सामान के या उस
किसी की हैबिट के ऊपर लगा रहे हो तो वो हैबिट और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है? ऐसा आपके संग ऐसा हुआ है कि किसी ने बोला है कि अरे कम खाओ मोटी हो जाओगी, तो आपको क्या लगता है? हाँ, हो जाएंगे तो हो जाएंगे और खा लेते हो। आपके संग ऐसा हुआ है? जल्दी उठो वरना लेट हो जाओगी, कोई बात नहीं मेरे ऊपर। लाइक आई हैव गॉन थ्रू दिस। ओके, क्या होता है, जितना जन सामने वाला बोलता रहता है आपको बात सुनना ही नहीं उसकी। और हैज इट हैपेंड विद यू? टेल मी। आई हैव मेरे संग तो हुआ ही, एंड आई हैव सीन इट हैपन विद सम अदर पीपल आल्सो, लाइक इन माय हाउस ओनली, और मे बी वी आर ऑफ द सेम, क्या बोलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सो वी आर लाइक काइंड ऑफ सिमिलर। ओके, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू आस्क कि बाकी संग के सब भी ऐसा होता है कि सिर्फ मेरे ही घर में ऐसा होता है? तो हमने देखा ऐसा नहीं करो, जिसको बोलो नहीं करना है तो वो और करता है। ओके, इट कुड बी फॉर आवर बेनिफिट, बट वी ट्राई टू नॉट लिसन टू पीपल व्हेन वी आर बीइंग टोल्ड टू डू दैट। ओके, तो बिल्कुल यही है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। तो अगर आपको उसके बारे में आप चाहते हो कि वो अच्छी हो जाए चीज, तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू लेट इट बी, यू जस्ट हैव टू लेट दैट पर्सन बी। तो बिल्कुल यही बात वो कह रही है, व्हेन वी आर पुटिंग आवर एनर्जी ऑन थिंग्स विच वी डोंट वांट, वो और एग्रवेट हो जाएगी, वो और बढ़ जाएगी। वेदर इट्स कुछ फेमिनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में, एनीथिंग दैट वी डोंट वांट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मीन्स वी आर मेकिंग इट बिगर एंड बिगर। हाँ। Yeah. Bob Doyle, the reason that what you resist persists is because if you're resisting something, you are saying, no, I don't want this thing because it makes me feel this way, the way I am feeling right now. So you're putting out a really strong emotion of, I really don't like this feeling. And then it comes racing towards you. यस, तो हमने ये पढ़ा है कि यूनिवर्स सिर्फ हमारी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी समझता है। ठीक है, वो ये नहीं समझता है कि हमको ये चाहिए या हमको नहीं चाहिए। जो भी बिलो द लाइन की फीलिंग की चीजें होती हैं, हाँ, हम लोग जनरली क्या होता है, हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा स्ट्रांगली फील करते हैं। जब हमको गुस्सा आता है तो हमारी पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तो आप सोचिए, हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सॉरी वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हमारी बॉडी ही शेक कर रही है उस गुस्से में या दुख में, इट्स लाइक यू हैव सीन पीपल वो क्राइंग एंड दे आर शेकिंग, दे आर स्कैर्ड एंड दे आर शेकिंग एंड शिवरिंग। आपने देखा होगा, आपने खुशी में किसी को शिवर होते देखा है? उसको उतने ज्यादा खुशी है वो ऐसे से नो, इट्स लाइक मोस्टली व्हेन दे आर अपसेट, व्हेन दे आर एंग्री, व्हेन दे आर सैड, दैट इज व्हेन दे आर शिवरिंग। आप सोचिए उस टाइप की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो व्हाट बॉब डॉयल इज टेलिंग अस दैट इट कम्स रेसिंग टुवर्ड यू। तो उसी फ्रीक्वेंसी की और चीजें हमारे लाइफ में आती जाती हैं। ठीक है, आप बोलते हैं ना, आई हेट गोइंग टू द मॉल। ओके, नॉट मॉल, लाइक मे बी अ फूड कोर्ट में भी, आई डोंट नो, आप देखिए क्या है, आपको बहुत मन है कि आप वहां कभी मत जाओ, लेकिन क्या होता है, इनवेरिएबली आपके घर के कोई लोग या कोई आपको कहीं वहां भेज देते हैं। हैव यू सीन इट? हैव यू फेल्ट इट? तो ये क्या होता है, जब हम उसको इतना स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स को ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में इस इंसान की बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, तो वो उतनी बार, उतनी स्पीड में, उतनी जल्दी उसके लाइफ में आता है। ठीक है, सो दैट इज वाई वी आर नॉट टू रेजिस्ट एनीथिंग। रेजिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, या तो वो जो स्ट्रॉन्ग चीज होती है उतना ही स्ट्रांगली आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट होकर आती है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो विद द फ्लो। हाँ, जैसे हमने इसी में पढ़ा था ना, इसी बुक में, दैट जब आप पानी के अंदर जा रहे हो, ओके, लाइक व्हेन यू आर गोइंग विद द फ्लो, योर लाइफ इज स्मूथ। व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, हम लोग ने इसके बारे में ये भी पढ़ा है कि नहीं, गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके ये आपको जीवन में कुछ मिलेगा, ये है वो है, नहीं। व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, यू आर फीलिंग ऑल काइंड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो वी हैव टू गो विद द फ्लो, वी हैव टू बी, ये कब आपको, ये हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जब कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, या कोई और हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है, वी आर नॉट टू अपोज इट, वी जस्ट हैव टू लेट देम बी एंड वी हैव टू बी इन आवर जोन। वी हैव टू बी मेंटली थिंकिंग हैप्पी थिंग्स। Yeah, so when we are doing that, then we are attracting good things and not those negativity related things in our life. Yes. Resistance to anything is like trying to change the outside pictures after they have been transmitted. It's a futile pursuit. You have to go within and emit a new signal with your thoughts and feelings to create the new pictures. या तो अब आप रेजिस्ट कर रहे हो, जैसे आप बोले नहीं मुझे मॉल नहीं जाना है, तो आपने ऑलरेडी तो एक मॉल की पिक्चर बना दी है, लाइक आई एम सेइंग मॉल बट आई एम अज्यूमिंग आप उसको स्पेंसर या जो भी आपको नहीं करने का मन है, तो
सॉरी, आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी उसकी एक इमेज बना दी है, ठीक है, कि मुझे वहां नहीं जाना है, बट आप अपने आप को जब आप ये बोलते हो तो यू आर ऑलरेडी इन दैट प्लेस। तो जब हम यूनिवर्स को उसको चेंज करना चाहते हैं तब वो चेंज नहीं होएगा। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पिक्चर। ओके, वी हैव टू एमिट अ न्यू सिग्नल विद आवर थॉट्स, लाइक नहीं मुझे मॉल नहीं जाना है, मुझे मे बी लाइक लोकल मार्केट जाना है, आई डोंट नो, लाइक समवेयर एल्स। तो यू हैव टू से दिस इज वेयर आई वांट टू गो, नॉट दैट दिस इज वेयर आई डोंट वांट टू गो। नॉट दैट मैं चाहती हूँ ये रिलेशनशिप ऐसा हो जाए, ना कि ये कि वो मुझसे बहुत लड़ाई करता है और मुझे पसंद नहीं है। हमको ये नहीं बोलना है, हमको जो चाहिए हमको वो ही फीलिंग्स लेके आनी है और वो ही पिक्चर क्रिएट करनी है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, हमने ये भी पढ़ा है, इट इज ऑल अबाउट इंक्लूजन। जो हमको चाहिए हमको उसके बारे में सोचना है, जो हमको नहीं चाहिए यूनिवर्स उसको हटा नहीं सकता। इट इज नॉट अबाउट एक्सक्लूजन, ये हमने पढ़ा है, राइट। तो वी हैव टू थिंक ऑफ थिंग्स विच वी वांट इन आवर लाइफ। Yes. Right. As you resist what has appeared, you are adding more energy and more power to those pictures you don't like, and you are bringing more of them at a furious rate. The event or circumstances can only get bigger because that is the law of the universe. Yeah. So see, when we are thinking more about it, something that we don't want, हम लोग उसको इतनी strong feelings दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग और energy दे रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है, where your attention goes, energy flows. अब आप देखिए, Rhonda is telling us it, we are attracting them at a furious rate. माने furious is again a negative word. तो अगर हम नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं किसी चीज को, उसको हम और जोर से और पावर से हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है that we stay in the happy zone, we stay in the positive state of mind. Yeah. As you, just a moment. Yeah. We have missed one paragraph, I guess. Acha. This one I thought we have read. नहीं, हो गया. Hmm. Yeah. Jack Canfield. The anti-war movement creates more war. The anti-drug movement has actually created more drugs because we are focusing on what we don't want, drugs. Yeah, please read. Yeah. Lisa Nicholas. People believe that if we really want to eliminate something, focus on that. How much sense does it make for us to give the particular problem all of the energy as opposed to focusing on trust, love, living in abundance, education, or peace? यस, तो पहले तो जैक कैनफील्ड कह रहे हैं, इसी को अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करें तो वो कह रहे हैं कि जो हमको नहीं चाहिए, जैसे वॉर नहीं चाहिए, हमको ड्रग्स नहीं चाहिए, हमको टेररिज्म नहीं चाहिए, तो अगर हम उस पे ही फोकस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी एनर्जी उसी पे दे रहे हैं और उसी को हमारे लाइफ में और अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज टेलिंग अस, बिकॉज व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन दैट वी डोंट वांट ड्रग्स, वी आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दैट। जैसे आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे दिन भर फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है, पहले इतने लगे रहते थे नहीं, थोड़ी देर रहते होंगे और आपने उसके बारे में बोलना शुरू किया, जिसको देखो अरे बच्चे तो दिन भर फोन पे ही लगे रहते हैं। अब क्या हो गया, अब तो एक्चुअल में दिन भर बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, है ना। पहले ये टीवी पे था तब फोन में नहीं थे, तो आप बोलते थे अरे दिन भर टीवी देखते रहते, दिन भर कार्टून देखते रहते हैं, तब ऐसे बोलते थे, है ना। तो अब क्या हो गया है, अब बच्चे तो छोड़िए, जिसको भी देखिए वो फोन पे ही लगाओ, एनीवेयर यू गो, हॉल में जाइए, मूवी थिएटर्स में, दे आर सिटिंग इन अ थिएटर बट दे आर वॉचिंग ऑन समथिंग ऑन देयर फोन। हाँ, वो आप सड़क पे चल रहे हैं तो भी फोन, कार में बैठे हैं तो भी फोन, कहीं पे भी बैठे हैं दे आर फोन। क्यों? बिकॉज हम ये बात कर रहे हैं कि एवरीवन इज सो बिजी। आज ही हमने कोई फॉरवर्ड पढ़ा कि रक्तदान और दूसरा क्या था, एक और कौन सा, कन्यादान आर वेरी गुड, बट उससे ज्यादा आजकल अगर रिलेशनशिप से आपको बचाना है तो क्या देना है आपको, वक्त दान। ओके, आई वाज लाइक यस दिस इज अ वंडरफुल थिंग, या वक्त दान इज अमेजिंग। आप देखिए रेस्टोरेंट जाते हैं तो सब जन एक टेबल पे बैठे, बट ऑल ऑफ देम आर लुकिंग ऑन देयर फोन्स, एवरीवन, कि क्या व्हाट्सएप है, फेसबुक है, नथिंग। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं आप उनके संग ही बैठे हुए हैं, बट आप क्या किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो बैठ के। तो क्या हो गया है, हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि नो वन हैज टाइम फॉर अस, बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग एनर्जी टू दिस सेंटेंस, एंड एक्चुअल में यही हो रहा है। हाँ, तो आप देखिए जो हमको नहीं चाहिए अब उसके के बारे में बात करें और उसी को हम लोग और बढ़ा रहे हैं हमारे लाइफ के अंदर। एंड व्हाट लीसा निकोल्स इज टेलिंग अस दैट अगर हम लोग एक्चुअल में किसी चीज को हटाना चाहते हैं तो हमको किस पे फोकस करना है, जो हमको चाहिए। लाइक इफ वी वांट लव,
we have to talk about love. If we want abundance of food, money, fuels, जिसके बारे में हमको बात चाहिए है, हमको उसी के बारे में बात करनी है और वो ही हमारे लाइफ में आएगा. Yeah, so if we are focusing on trust, love, living in abundance, education, peace, तो हमको सिर्फ इसी के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि ये कि गरीबी हटाओ. हमको बात करनी चाहिए कि कैसे हम लोग अमीरी बढ़ाएं, कैसे हम लोग लोगों को अपलिफ्ट करें. वी शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट. ओके, अभी आप जैसे देखिए, वी टॉक अबाउट Rahul Gandhi so much. Okay. Yes. Everything, all jokes and memes are about him. Yes. अभी जब भी election होता है तो we are, you know, तो क्या हो रहा है? Don't you think we are giving energy to him? But if we want him in power, we should be doing that. Yeah. तो जिसको हमारा एनर्जी, हमारा फोकस जिस पे जा रहा है, एक्चुअल में वी आर मेकिंग दैट पर्सन बिगर एंड बिगर. एवरी वन ऑफ अस इज डूइंग दैट. या, सो वी हैव टू सी व्हाट वी एक्चुअली वांट इन आवर लाइफ, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. आप डोनाल्ड ट्रंप का एग्जांपल देखिए. इलेक्शन के पहले एवरीवन वाज टॉकिंग अगेंस्ट हिम, तो हुआ क्या? ही ओनली बिकेम द प्रेसिडेंट. यही हुआ, एवरीवन वाज टॉकिंग अगेंस्ट हिम बट स्टिल ही बिकेम. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी वर गिविंग हिम दैट एनर्जी, वी वर फोकसिंग ऑन हिम एंड ही केम इनटू, यू नो, लाइमलाइट. आप जो भी बोलिए, तो हमको यही करना है, जो हमको चाहिए वी हैव टू फोकस ऑन दैट. या इजी. Yeah. Jack Canfield. Mother Teresa was brilliant. She said, I'll never attend an anti-war rally. If you have a peace rally, invite me. She knew. She understood the secret. Look what she manifested in the world. यस, तो आप देखिए मदर टेरेसा का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एंड शी वॉज इन आवर कंट्री ओनली, इनफैक्ट इन माई सिटी ओनली. क्या आप देखिए, उन्होंने ये कहा है, आई नेवर अटेंड एन एंटी वॉर रैली, इफ यू हैव पीस रैली इनवाइट मी. तो आप सोचिए ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उनको डेफिनेटली इसके बारे में पता था. बट हमारे कंट्री क्या, पूरे वर्ल्ड में ही क्या होता है, हम लोग किसके बारे में रैली करते हैं? हाँ, जो हमको नहीं चाहिए हम उसी को फोकस कर रहे हैं, उसी में और लोग जुड़ जुड़ के एनर्जी दे रहे हैं. ठीक है, यही होता है ना. अब देखिए ये मास एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल होती है. अब देखिए मे बी शायद इसीलिए ऐसा होता है कि जब शादियां होती हैं, लोग बारात में जाकर डांस करते हैं, तो कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है. ठीक है, तो वही करना चाहिए हमको. हाँ, ये जो कीर्तन होते हैं, ये जो जगराते होते हैं, उसमें कितनी पॉजिटिविटी होती है. तो लेकिन क्या हम लोग उन चीजों के अलावा और कब जाते हैं? जाते ही नहीं है. अब देखिए ना, हम लोग उसमें जाके अगर और कंट्रीब्यूट करें इस एनर्जी को तो कितना अच्छा रहे. पहले कितना अच्छा होता था, ये जो कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते थे, कितनी उसमें पॉजिटिविटी होती थी. अब कितने कम हो गए. हम लोग लगता है कौन जाए उसके अंदर, अब ऐसी फीलिंग आती है. कॉम्प्लेक्स में भी कोई इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, आप लोग कितने जन जाते हैं उसमें? बोलिए, हार्डली कोई जन जाता होगा. फिर भी लोग जाते हैं, तो वो लोग पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं. आप सोचो नहीं कौन जाए, इसकी ड्रेस देखो, ये करो वो करो, यही सब लफड़ा होता है, कौन जाए उसके अंदर. हाँ, बट एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि वो जो हंसी खुशी की चीजें होती हैं उसमें हमको और जाना चाहिए, है ना. हम लोग ये जो जो भी इस टाइप की फेस्टिविटी वाली चीजें होती हैं, हमको उसमें और जाके पॉजिटिविटी के संग उसको बढ़ावा देना चाहिए. इनफैक्ट आप देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एंटी वाली चीजें होती हैं उसमें होता है कि ये कैंडल मार्च हो रही है, यू नो, कि रेप के अगेंस्ट में हो रही है, या टेररिज्म के अगेंस्ट में हो रही है, या कि कहीं पे कुछ अत्याचार हो गया, आप लोग उसके में कैंडल मार्च कर रहे हैं. तो व्हाट आर वी डूइंग? As per Mother Teresa, if we are going in that, if we are adding energy to that, we are focusing on that, we are attracting more of that in our life. Okay, so what we should be doing is we should be talking more about peace, you know, abundance, love, trust. हमको उन चीजों के बारे में बात करना चाहिए और उसको हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहिए. Yeah. Halle Dwoskin. Doskin, So yeah. if you're anti-war, be pro-peace instead. If you are anti-hunger, be pro-people having more than enough to eat. If you are anti a particular politician, be pro his opponent. Often elections are tipped in favor of the person that the people are really against because he is getting all the energy and all the focus. यस, तो अब देखिए यहाँ पे यही वाला हो गया, डोनाल्ड ट्रंप वाला हो गया. और अगर हम लोग वैसे ही राहुल गांधी के बारे में इतनी बातें करेंगे, वी नेवर नो कौन आ रहा है नेक्स्ट पीएम बन के. ओके, वी डोंट नो, सो वी हैव टू सी व्हाट वी वांट. Hildoskin is telling us that if we want something, we have to talk about that rather than talking anti that. आप रेस्टोरेंट में जाके यही बोलते हो ना कि मुझे इडली डोसा खाना है, आप यही ऑर्डर देते हैं ना. आप ये थोड़ी बोलते मुझे वड़ा नहीं खाना है, मुझे उपमा नहीं खाना है. नहीं, जो चाहिए हमको उसी के बारे में बात करनी है. सो दिस इज व्हाट
He's telling us that what we want, we have to talk about that. ठीक है? Whether it is about politicians, whether it's about, anything that is important, we have to talk about what we actually want in our life. Yeah. Hmm. Everything in this world began with one thought. The bigger things get bigger because more people give their thoughts to it after it has appeared. Then those thoughts and emotions keep that very event in our existence and make it bigger. If we took our minds off and focused instead on love, it could not exist. It Hmm. would evaporate and disappear. Yes, तो एक्चुअली एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिगेन विद वन थॉट। चाहे आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करिए, वेदर इट्स एनी इन्वेंशन, ओके, एनीथिंग, इवन द फोन। फोन तो खैर है ही, आई वाज टॉकिंग अबाउट आईफोन या इस टाइप का आजकल का फोन, बट अगर हम लोग ग्राहम बेल की भी बात करें, एवरीथिंग बिगेन विद द थॉट। पहले के डेट में आप सोच सकते हैं कि हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से ऐसे बैठ के बात कर रहे होते? बताइए, कोई नहीं सोच सकता था। हाँ, पहले मे बी कुछ इस टाइप की जो मूवीज होती होंगी, हातिम ताई टाइप की, उसमें ऐसा होता कि अरे वो सडनली सामने आ गया, या हैरी पॉटर टाइप की उसमें होता था। बट एक्चुअल में आजकल तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही नहीं है कि इट्स लाइक वी आर ऑल सिटिंग इन डिफरेंट रूम्स, डिफरेंट सिटीज, एंड वी आर इंटरेक्टिंग एंड वी कैन सी ईच अदर। या तो इजंट इट अमेजिंग? तो ये सारी चीजें उस थॉट से ही शुरू हुई, और वो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुंच गई। पहले हम लोग एक नॉर्मल फोन कॉल में भी रहते थे, अब देखिए फोन हम लोग पॉकेट में लेके घूमते हैं। एंड देयर वाज एन एड, वो आपने ऐड देखा है कि उसने फोन ही कान में इंस्टॉल करा लिया? यू सीन दैट? हाँ, एक था कि वो बोली, मम्मा आई हैव गॉट दैट थिंग इंस्टॉल्ड इन माय ईयर्स एंड लुक आई एम टॉकिंग। आई वाज लाइक व्हाट? व्हेन आई सॉ दैट आई वाज लाइक ज़ैप्ड कि ऐसा भी होने वाला है फ्यूचर में। हाँ, तो मुझे लगा कि ये तो टू मच ही हो जाएगा अगर ऐसा होगा। बट एक्चुअली हर चीज थॉट से स्टार्ट होती है, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज बैड। सो व्हाई शुड वी नॉट फोकस ऑन व्हाट वी वांट? अगर हम लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि यस सब जगह अबंडेंस रहे, जो हम कि लाइक कंट्री में सारी चीज़ों की अबंडेंस रहे, रोड्स इतनी अच्छी रहे, इलेक्ट्रिसिटी सब जगह रहे, पानी सब जगह रहे, खाना पीना एकदम अबंडेंस में रहे। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, we are attracting that for our country. That is what we are attracting for the world. Okay, so if we took our minds off it, like off what, of कि महंगाई हो रही है, कि गवर्नमेंट इतनी गंदी है, सब जगह क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वो ब्राइबरी है, हाँ, इतना सारा करप्शन है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, दैट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइव्स। या Remember, and this is one of the most difficult as well as most wonderful statements to grasp. Remember that no matter what the difficulty is, no matter where it is, no matter who is affected, you have no patience but yourself. You have nothing to do but convince yourself of the truth which you desire to see manifested. Charles Hannell. या तो अब देखिए, ही इज टेलिंग अस दैट देयर इज नो पेशेंट बट योरसेल्फ। माने हमको सिर्फ हमारे पे फोकस रखना है। हमने पढ़ा ना, योर जॉब इज यू, राइट? हमने ये पढ़ा ना, हमको सिर्फ हमारे से मतलब है। हाँ, अब हम ये नहीं कहते कि इट इज अबाउट बीइंग सेल्फिश, इट इज लाइक I have to be positive. If each one of us start thinking that I am positive, that I will keep my city clean, I will keep my room clean, I'll keep my house clean, हर जन अगर यही चीज सोचने लगे, तो सारी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक सब सही हो जाएंगी। या तो हमको वही करना है। We are only to focus on ourselves. You have nothing to do but convince yourself of the truth which you desire to see manifested. माने आपको जो चाहिए, सिर्फ हमको उसी पे फोकस रखना है। ठीक है? So when we are focusing on what we want, that is what we are manifesting. Okay? Yeah. Jack Canfield. It's okay to notice what you don't want because it gives you contrast to say, this is what I don't want, this is what I do want. But the fact is, the more you talk about what you don't want or talk about how bad it is, read about that all the time, and then say how terrible it is, well, you are creating more of that.
यस, तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखिए वो उसका बेटा है शाहरुख खान का, इसीलिए उसके ऊपर सारी पब्लिक, उसके सारे पॉलिटिशियंस उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो माने जितना आप इस टाइप की बातें बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप वो ही और क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट जैक कैनफील्ड इज टेलिंग अस। बट एकदम ठीक बात है, आपने नोटिस कर लिया कि आपको क्या नहीं चाहिए, उसके बाद हमको उस पे फोकस करना है जो हमको चाहिए। ठीक है, कि ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कि रोड पे पुलिसमैन ऐसे सबको हैरेस करें, तो मेरे को क्या चाहिए? हमको वो बोलना है, हमको बोलना है कि नहीं, पुलिसमैन आर सो हेल्पफुल, वो कितने अच्छे से सबको टेक केयर कर रहे हैं, वरना कितना केओस होता। दे आर सो नाइस, दे आर सो हेल्पफुल। तो हमको हमारा ध्यान उस पे फोकस करना है जो हमको एक्चुअल में चाहिए, ना कि उनके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड करने से या नेगेटिव बातें बोलने के लिए। ओके, या प्लीज जी। Yeah. You cannot help the world by focusing on the negative things. As you focus on the negative events of the world, you not only add to them, but you bring more negative things into your own life at the same time. या तो ये हमने पढ़ा है मैजिक बुक में भी, कि अगर हम गवर्नमेंट के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि तो एकदम ही क्या हो गया, इतना करप्शन है, गवर्नमेंट को तो किसी की का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है, दे आर जस्ट लाइनिंग देयर पॉकेट्स एंड फिलिंग देयर पॉकेट्स। अगर हम वो बात कर रहे हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो हम और वैसी ही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, जितना ज्यादा हम कंप्लेन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम हमारे लाइफ में और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी हैव रेड दैट ना, ईच कंप्लेंट दैट वी आर मेकिंग इज मेकिंग आवर लाइफ 10 स्टेप्स बैक। ये हमने पढ़ा ना, कि आपने एक कंप्लेंट की, बी इट आउट एनी वन, वी आर गोइंग बैक 10 स्टेप्स नीचे। कि जैसे लूडो में वो आपने सांप काटा, एंड देन यू गो बैक। So it is actually like that. When you are complaining or when you are focusing on things that we don't want, we are actually going back 10 steps in our lives. Okay, so we have to focus on what we want, and we are not to talk, we are to only talk positives. Yeah. When the pictures have appeared of something you do not want, it is your cue to change your thinking and emit a new signal. If it is a world situation, you're not powerless. You have all the power. Focus on everybody being in joy. Focus on abundance of food. Give your powerful thoughts to what is wanted. You have the ability to give so much to the world by emitting feelings of love and well being despite what is happening around you. यस, तो कितनी बार हम बोलते हैं, अरे हम क्या करें, देखो क्या हो रहा है, हम लोग ऐसी बात करते हैं ना, देखो पूरे सिटी में क्या हो रहा है, पूरे कंट्री में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो वहाँ पे ऐसा हो रहा है, एंड लाइक बी इट एनी सिचुएशन वी टॉक अबाउट दैट ना। अगर आप सीरिया की बात करें, कश्मीर की बात करें, या कभी भी कुछ भी इस टाइप के जब कुछ होते हैं ना, राइट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उसके बारे में और नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग और फ्यूल डाल रहे हैं उसके बारे में। So now what Rhonda Byrne is telling us, when we think of such things, when we see such things, what we have to do is we have to take a cue. Now we have done the magic book. हमको पता है क्यू क्या होता है। It is a cue to change your thinking and emit a new signal. माने आपने जहां देखा ऐसी कुछ बात आ रही है, तुरंत हमको उसके बारे में अच्छी बात बोलनी है, ठीक है। Because even if it's a world situation, you are not powerless. She's telling us we have the power. We have all the power. कि हम उस बात के बारे में अगर पॉजिटिविटी से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो क्या होगा, वो ही चीजें स्प्रेड होंगी। कहीं आपने कुछ एक्सीडेंट देखा, लाइक थिंग्स हैपन एंड यू से आई जस्ट विश एवरीवन इज सेफ एंड फाइन। आपको ये बोलना है ना कि अरे पहले तो आप मुझे बताओ कितना उन लोग के तो घर लूट गए होंगे, ये हो गया, यही होता है ना, अपन ऐसी बात करते हैं ना। कुछ अर्थक्वेक आया, हाँ, या कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो हम ये बोलते हैं देखो सारे गांव वाले लोग आ गए होंगे लूटने के लिए। यही हमारे मन में कितने बार बात आती है कि नहीं आती है, या बट व्हाट वी हैव टू सी इज दे हैव कम टू हेल्प। ओके, दे आर सो नाइस, वो लोग पूरा रात करके लाइक दे आर ट्राइंग टू सेव पीपल। हमको वैसी बात करनी है, नॉट टू थिंक अबाउट नेगेटिव, बिकॉज व्हेन वी आर थिंकिंग दैट, व्हेन वी आर स्पीकिंग दैट, वी आर अट्रैक्टिंग दैट। Okay, we are attracting that negativity. So Rhonda Byrne is telling us that we have the power. Each one of us has this tremendous power to change our country, to change this world. When we are talking positive, when we are emitting feelings of love and positivity, that is what we are attracting. Okay, and that is what will happen around us. Yeah. तो अब आपको ध्यान देना है कि कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है, हम उसके बारे में क्या एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक है। क्या हम उस आग को और भड़का रहे हैं, या हम उसको शांत कर रहे हैं। Yeah.
James Ray. So many times people say to me, well, James, I have to be informed. Maybe you have to be informed, but you don't have to be inundated. Hmm. When I, Yeah, please read. Yeah. when Hmm. I discovered The Secret, I made a decision that I would not watch the news or read newspapers anymore because it did not make me feel good. The news services and the newspapers are not in any way to blame for broadcasting bad news. As a global community, we are responsible for it. We buy more newspapers when a huge drama is the headline. The news channels' ratings skyrocket when there is a national or international disaster. So the newspapers and news services give us more bad news because, as a society, that's what we are saying we want. The media is effect, and we are Hmm. एक सेकेंड ना नीचे वो ये आ गया उनका सोनिया जी का मैसेज Okay. Hmm. That's what we are saying we want. The media is effect and we are cause. It is just the law of attraction in action. या तो अब आप देखिए कई जन बोलते हैं अरे नहीं हम अगर दिस इज व्हाट ना एक्चुअली आई हैव आल्सो स्टॉप वाचिंग द न्यूज़ एंड ऑल ओके पहले क्या होता था न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो यही सारी न्यूज़ आती थी अरे इस बच्चे के संग ये हो गया यहाँ पे ये हो गया उसका घर लुट गया उसकी वाइफ को जला दिया ये चोरी हो गई क्या बोलते हैं सर्वेंट ने एल्डरली कपल को लूट लिया और मार दिया ऐसी न्यूज़ आती थी ज्यादातर ठीक है या कोई शॉप में चोरी हो गई ओवरनाइट ये सब कुछ हो गया तो क्या होता था व्हेन यू आर रीडिंग दैट when I was reading that, I would be so disturbed, especially when reading about the kids and this. तो एकदम अच्छा नहीं लगता. And I was thinking, कैसे कोई बच्चों के संग ऐसे कर सकता है, And I would be so disturbed. So I actually stopped reading the newspaper. और इसके पहले ही, और मेरे को कूलली बोलते कोई पेपर नहीं पढ़ता, पेपर नहीं पढ़ता. I was like, no, I don't want to read such things. तो आप देखिए, आपने देखा है कि इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में इस टाइप की न्यूज नहीं आती है, राइट? बिजनेस वाले जो जर्न बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब आते हैं उसमें ये सब न्यूज नहीं आती है तो आप देखिए कितने लोग वो पेपर पढ़ते हैं हाउ मेनी ऑफ अस हमारे घर में अगर हम सोचें आई थिंक हम लोग जितने भी जन है मे बी 10% के यहाँ पे वो पेपर आते होंगे ऐसा क्यों है तो मीन्स हम लोग को हमारा ध्यान ये सारे पेपर हटा के जो मास के लिए बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं बिकॉज दिस इज व्हाट इज लाइक इट इज टिटिलेटिंग द ऑडियंस उनको वो पढ़ने में अच्छा लगता है तो मीडिया वैसे ही न्यूज छापती है उनको वही अच्छा लगता है तो वही वो लोग करते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग दे आर गिविंग मोर आइडिया टू द पीपल तो हमको ऐसी चीज पढ़नी नहीं है हमको ऐसी चीज को फ्यूल देना ही नहीं हमको हमारी एनर्जी वहां देनी ही नहीं है तो आप अगर इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं आप बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आप क्या करें you are talking about abundance you are reading about how the economy is going to grow how this industry is doing well तो अगर हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे तो हम लोग वो एनर्जी दे रहे हैं उनको एनर्जी दे रहे हैं और हमारे लाइफ में भी वही चीजें आएंगी ठीक है सो वी शुड स्टार्ट रीडिंग समथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ हम ये नहीं कह रहे आप पेपर पढ़ना ही बंद कर दीजिए ठीक है आप पढ़िए पेज 3 पढ़िए उसमें जो लास्ट में एक सप्लीमेंट आता है वो पढ़िए कि क्या क्या हो रहा है इफ यू वांट टू रीड दैट डोंट रीड सच थिंग्स आप अब ये उन्होंने कहा है कि सो मेनी टाइम्स पीपल से टू मी आई हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो खाली बस वहीं तक ठीक है डोंट गेट अफेक्टेड डोंट इमेजिन दैट डोंट टॉक अबाउट दैट ठीक है आप उस बाढ़ में मत बह जाइए वो जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं विच इज नॉट नाइस विच इज एडिंग टू द नेगेटिविटी नॉट जस्ट इन योर लाइफ बट ऑल्सो दैट इज हैपनिंग अराउंड डोंट बी अफेक्टेड इफ दैट इज हाउ यू कैन रीड इट प्लीज रीड अगर नहीं है तो एक्चुअल में मत पढ़िए जब रोंडा बन कह रही उन्होंने पेपर पढ़ना बंद कर दिया एक्चुअल में ऐसे ही हमने तो अभी पढ़ने बट आई ऑल्सो स्टॉप द डे आई स्टार्टेड द मैजिक बुक मेरे को लगा एक्चुअल में वैसे भी हम कम पढ़ते थे अब तो और बंद कर दिया क्योंकि क्या होता था इनवेरिएबली उन्हीं में न्यूज ध्यान चला जाता था ठीक है तो नाउ आई गॉट कि ना स्टैम्प लग गया हाँ मत पढ़ो पेपर और अच्छी बात है ठीक है सो आई एक्चुअली स्टॉप रीडिंग द न्यूज पेपर एंड यही हो रहा है द मीडिया इज इफेक्ट एंड वी आर द कॉज क्योंकि क्या होता है जब आप ये पढ़ रहे हो आपको वही न्यूज चाहिए कैसे सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे हाँ all the news channels was just talking about that all of it क्यों because we wanted to know अरे क्या हो गया रिया चक्रवर्ती ये वो we wanted to know that तो क्या हो रहा था सारे न्यूज चैनल वही दिखा रहे थे ठीक है अभी सेम इज आई थिंक आई डोंट नो आई हैव नॉट वॉच द न्यूज चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम बट जो भी सोशल मीडिया वाले लाइक फोन में जो आ जाता है उसमें उसका आ जाता है शाहरुख खान के बेटे का दैट्स इट तो हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर एडिंग फ्यूल टू इट
तो क्या होगा, वो वैसे ही करेगी, जो हमको चाहिए वही तो मीडिया दिखाएगी ना। तो मीडिया इज द इफेक्ट, वी आर द कॉज, वी इन द सेंस लाइक वी द सोसाइटी एज द कॉज। हमको जो चाहिए, टेलिंग अस व्हेन देयर इज इंटरनेशनल और नेशनल डिजास्टर, तब उनके टीआरपी बढ़ जाते हैं। क्यों? एवरीवन वांट्स टू नो, एवरीवन इज फोकस्ड ऑन दैट, ऐसे किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे ही कुछ इस टाइप की न्यूज आती है, एवरीवन स्टार्ट्स वाचिंग। तो क्या हो रहा है, तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही यूज कर रहे हैं। कैसे? ऐसी ऐसी न्यूज और आएगी और वो लोग ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे। पहले क्या होता ना कि सास ने बहू को कुछ भी कर दिया, कोई आते नहीं। अब क्या होता है, थोड़ा सा ही कुछ बोल भी जाए तो उसकी भी इतनी बड़ी एक न्यूज बन के आ जाती है, ठीक है। इनफैक्ट होना क्या चाहिए कि यस, सास बहू मिलके इतना सारा प्रमोशन कर रहे हैं, सास बहू मिलके इतने सारे बिजनेस कर रहे हैं। इफ दे आर पुटिंग सच न्यूज आर्टिकल्स इन द पेपर, व्हाट आर वी प्रमोटिंग? वी आर प्रमोटिंग गुड रिलेशनशिप्स, ओके। अगर हम लोग ये बात करें कि यस, यू नो, इट्स लाइक व्हाट एवर वी एक्चुअली वांट हैपनिंग, वो एक छोटी सी न्यूज भी अगर पेपर में आती है तो उसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं और वो अच्छाई बढ़ती है दुनिया में, ओके। सो लेट्स सी इट। Yeah. The news services and newspapers will change what they deliver to us when we emit a news signal and focus on what we want. या सो अब सब लोग अगर हमारे तरह के इतने जन अगर न्यूज़पेपर ही पढ़ना बंद कर देंगे, व्हाई? बिकॉज उसमें यही सब चीज़ें आती रहती हैं, और हम लोग सब लोग इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने लगेंगे, इस टाइप की न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगेंगे जिसमें सिर्फ काम की बातें हैं, नॉट ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रमोटिंग नेगेटिविटी। तो क्या होगा, हम लोग एक न्यूज़ सिग्नल एमिट कर रहे हैं और वैसी ही न्यूज़ आने लगेगी। या Michael Bernard Beckwith. Learn to become still and to take your attention away from what you don't want and all the emotional charge around it, and place the attention on what you wish to experience. Energy flows where attention goes. Think truly, and thy thoughts shall the world's famine feed. यस। It's Horatio Bonner, 1808 to 1889. या तो लर्न टू बिकम स्टिल। अभी क्या होता है, जो दिखता है, एक चींटी भी चल रही है तो तुम्हारा ध्यान उस पे चला जाता है ना। एक मक्खी भी उड़ रही है तो उस पे हमारा ध्यान चला जाता है। नहीं, हमको उस पे ध्यान देना है जो हमको चाहिए, और वो तब होगा। अभी क्या होता है, जो हो रहा होता है हम लोग उसमें भटक जाते हैं, उसमें हम लोग बहक जाते हैं, यही होता है ना। हाँ, बट हमको उसमें नहीं भी इंटरेस्ट है। जो न्यूज आ रही है, आप फोन में ही देखिए ना, उसमें जो न्यूज आती है आप उस पर क्लिक करते हो और उसको देखने लग जाते हो। क्यों? because we are just being fooled by the media, we are being directed by the media or the internet or the social media। यही होता है। आप एक चीज गूगल में टाइप करिए, ठीक है, और आपको दूसरे दिन उसी टाइप की चीजें ऐड आते रहते हैं, है ना। एंड यू थिंकिंग, तो क्या होता है, इफ यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, आप उसको फिर देख लोगे और देखते जाओगे, एंड मे बी यू विल बाय सम थिंग्स। बट हमको करना क्या है, वी हैव टू लर्न टू बिकम स्टिल। इट्स लाइक वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी एक्चुअली वांट, ओके। जो हमको चाहिए है, हमको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, ना कि जो हमको दिखाया जा रहा है हम लोग उससे इन्फ्लुएंस होके और उससे अफेक्ट हो जाए, ठीक है। एंड द इमोशनल चार्ज अराउंड इट, जो हमको नहीं चाहिए। हमने किसी की बात सुनी, वेदर इट इज अबाउट समवंस हेल्थ, समवंस रिलेशनशिप्स, हम उसको सुन रहे हैं, उससे अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तो हमारे लाइफ में भी वैसे ही आएगा, ठीक है। एंड this is where I think it started, energy flows where attention goes। बिल्कुल यही होता है, हम जिस पे फोकस करेंगे वो ही हमारे लाइफ में आएगा, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन ओनली द थिंग्स दैट वी एक्चुअली वांट। या एंड थिंक ट्रूली एंड दाई थॉट शैल द वर्ल्ड्स फेमिन फीड। माने अगर हम एक्चुअल में सोचें कि दुनिया में अपार खाने की चीजें, अबंडेंस है सब जगह। अगर हम ऐसा सोचें कि रिवर्स इतने अच्छे हैं, पानी सब जगह है सबके लिए, हवा कितनी प्योर है, इलेक्ट्रिसिटी है सब जगह, पेड़ इतने सारे हैं, इतनी अच्छी ऑक्सीजन दे रहे हैं सबको, सबके लिए खाने पीने की चीजें हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो दुनिया में वैसा ही होएगा, बिकॉज दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। या Are you beginning to see the phenomenal power you have in this world just through your existence? As you focus on the good things, you feel good and you are bringing more good things to the world. At the same time, you're bringing more good things into your own life. When you feel good, you uplift your life and you uplift the world. The law is perfection in operation.
यस। तो आप देखिए ये सारा पावर हमारे पास ही है, हर चीज़ का। चाहे हम हमारे लाइफ के बारे में बात करें, चाहे हम वर्ल्ड के बारे में बात करें, आपकी कंट्री के बारे में बात करें, सारा पावर हमारे में ही है। जितना ज़्यादा हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमको चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं, उतनी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी हमारे लाइफ में और सबके लाइफ में भी। सो शी इज़ टेलिंग अस व्हेन वी फील गुड एंड यू अपलिफ्ट योर लाइफ, ठीक है, हम दुनिया को भी उतना ही करते हैं, बिकॉज इट इज लाइक अ रिपल इफेक्ट, है ना। हम अच्छे फीलिंग्स में हैं तो हम चाहेंगे सब लोग हमारे आसपास अच्छे रहेंगे, राइट। आप अभी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको मन भी करता होगा मेड को डांटने का, तो आप एक बार एटलीस्ट 2 बार सोच के बोलते होगे, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ भी अच्छी रहे, एटलीस्ट एक बार तो आप सोचते ही होगे। टेल मी, है ना। या आप उसको डांट भी देते होगे तो फिर भी सोचते हो, ओहो अब ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, चलो ये है वो है, चलो उसको जाके एक वो एनकरेज करके आ जाते हैं। टेल मी, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, ठीक है। सो इसलिए आई नो डेफिनेटली आपके मन में भी आ रहा होगा। तो व्हेन वी आर फीलिंग गुड, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, हम लोग डेफिनेटली दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर अपलिफ्टिंग द होल वर्ल्ड, बिकॉज ये एक्चुअल में रिपल इफेक्ट होता है। पावर बुक में इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि देखिए ना, अगर आपने एक डांट लगाई, सपोज आपने मेड को डांटा, ये तुमने भी मेरा ये तोड़ दिया है, देखो इसका कितना महंगा ये है वो, आपने उसको, तुमको सैलरी नहीं मिलेगी आज की, या ये जो भी आज के तुम्हारे पैसे कट जाएंगे या इसके पैसे कटेंगे तुम्हारे। क्या हुआ? वो घर गई, उसने अपने बच्चे को डांटा, ठीक है, बच्चा दुखी हो गया, उसने अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली, हस्बैंड से भी लड़ाई हो गई, और हस्बैंड ने जाके बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया, समथिंग समथिंग। आप सोचिए, ये ऐसा होता है ना, डोंट यू सी, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस और समवन हैज स्कोल्डेड यू, और व्हेन यू आर इन अ बैड मूड, आप भी तो उसका चेन रिएक्शन करके दूसरों पे उसका करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो क्या होगा? अगर हम लोग पावर की बात करें तो जिसने जिसको जिसको आपके डांट से दुख हुआ है, आपको क्या लगता है आपके कर्मा में वो ऐड नहीं हो रहा है? वो 100% आपके कर्मा में ऐड हो रहा है। वो जो मेड ने जाके अपने अपने बच्चे को थप्पड़ लगाया, डांट लगाई, या अपने हस्बैंड से लड़ाई की बिकॉज यू स्कोल्डेड हर, दैट इज एडिंग टू योर कर्मा। ओके, सो सेम वे, इफ यू आर इन अ गुड मूड एंड यू आर ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने तोड़ दिया, अगली बार ध्यान से करना, ठीक है, एंड यू वुड से चलो ऐसे भी हम उसको बोर हो गए थे इस कप को देख देख के। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, तो क्या हुआ? आपने, उसने कोई गलती की, आपने उसको माफ कर दिया, वो घर जाएगी, उसके बच्चे ने भी कुछ गलती की, उसने उसको भी माफ कर दिया, तो क्या होगा? उसका भी आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ कर्मा वर्क्स, दैट इज हाउ यू आर क्रिएटिंग दिस रिपल इफेक्ट, you are creating this chain reaction and helping others, or adding to your karma. Okay, because this is law of perfection and it is always working. Yeah. Dr. John D. Martini. I always say when the voice and the vision on the inside become more profound, clear, and loud than the options, than the opinions on the outside, you have mastered your life. यस। ओके, तो बिल्कुल यही है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोल रही है कि अरे नहीं न्यूज़ देखो, ये करो, वो करो, हमको उससे मतलब ही नहीं है। मेरा फ़ोकस क्या है कि मुझको मेरी ये ड्रीम चाहिए, हमको मेरी ये डिज़ायर चाहिए, मेरे को गुड फीलिंग्स में रहना है, तो मेरे को सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस रखना है, ठीक है? एंड वो यही कह रहे हैं, विद योर वॉइस एंड द विजन ऑन द इनसाइड बिकम मोर प्रोफाउंड। और वो कैसे होएगी? जब हम चूज़ करेंगे, जब हम अवेयर होएंगे कि यस आई हैव टू चूज़ हैप्पीनेस, I have to focus on the positives, I have to see perfection। जितना ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ को हम मास्टर कर रहे हैं, राइट। एवरीवन सेज ना, दूसरों की बात मत सुनो। इन हियर अगेन वी हैव टू सी कि हमारे कान बंद है, हमारी आंख बंद है, हमारी मुंह भी बंद है, नाक बंद बोले जा रहे थे हम, ठीक है, हमारा मुंह भी बंद है। वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर्स, वी आर ओनली फोकसिंग एंड थिंकिंग अबाउट गुडनेस एंड सीइंग परफेक्शन। या Yeah. Lisa Nichols. It's not your job to change the world or the people around you. It's your job to go with the flow inside of the universe and to celebrate it inside the world that exists. यस। तो अब देखिए, अब ये जो इनसाइड है ये क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे अंदर जो है, हमको सिर्फ उसके बारे में सोचना है। हमारे अंदर क्या है? 5 एलिमेंट्स हैं। हमारे अंदर क्या है? आप सुप्रीम पावर बोलिए, जो भी बोलिए, हमको सिर्फ हमारी अच्छी फीलिंग्स पे रखना है, ध्यान रखना है, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल चेंज। हमने ये पढ़ा था मैजिक बुक में, यू हैव टू स्टार्ट विद द पर्सन इन द मिरर, ठीक है, एंड हु इज दैट पर्सन इन द मिरर? जस्ट मी, सिर्फ हमें, हमको हमारी खुशियां, हमारे पॉजिटिव थॉट्स, हमारे हैप्पीनेस पे फोकस रखना है, एंड द वर्ल्ड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ओके, या
You are the master of your life, and the universe is answering your every command. Don't become mesmerized by the pictures that have appeared if they are not what you want. Take responsibility for them. Make light of them if you can, and let them go. Then think new thoughts of what you want, feel them, and be grateful that it is done. या तो आप देखिए कितने बार हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती है ना कि जो हमको नहीं पसंद है, ओके, जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपने देखा है कई जन होते हैं उसको कॉमेडी बना देते हैं, मस्ती कर लेते हैं, अरे ये देखा हम यहाँ पे फिसल गए कितनी जोर से, ठीक है, यू हैव सीन इट, एंड कई जन होता है अरे फिसल गए, किसी ने देख तो नहीं लिया और दुखी हो गए, चुप के वहां से चले जाते हैं, ठीक है, सम पीपल आर लाइक दैट. सो व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, मेक लाइट ऑफ देम इफ यू कैन. माने कुछ भी लाइफ में आ रहा है, कोई भी पिक्चर आ रही है, पिक्चर इन द सेंस लाइक जो हमने नेगेटिव चीज सोची और वो ही आती है ना. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, दैट व्हाट वी थॉट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ. तो जो भी लाइफ में हो रहा है जो हमको नहीं पसंद है, ठीक है, वो पिक्चर जो हमको नहीं पसंद है, अगर हम उससे अफेक्ट हो रहे हैं, हाँ, तो ये गलत है. हमको उससे अफेक्ट नहीं होना है. वी हैव टू मेक लाइट ऑफ इट. कि माने कोई भी सीन चल रहा हो, वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, वी हैव टू बी हैप्पी. अगर कोई ऐसा सीन आ भी गया, ऐसा सीन जैसे लाइक कुछ सिचुएशन आ गई जो हमको नहीं पसंद है, वी हैव टू फाइंड समथिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट. कि चलो यहीं पे हो गया, मतलब आपको चोट भी लग गई, ठीक है, अरे चलो इतनी सी चोट लगी, वरना पता नहीं कितनी जोर से चोट लगती, थैंकफुली इतनी सी लगी, ठीक है. कोई भी सिचुएशन आ रही है, यू हैव टू थिंक दैट यस दिस इज द बेस्ट, इससे और भी खराब हो सकता था बट नहीं हुआ, आई एम सो हैप्पी, ठीक है. तो हमको ये सोचना है, एंड दैट इज हाउ आवर pictures will change. If you are looking at the positives, if you are making light of it, if you are seeing the fun in everything, then our life starts changing for the better. Okay, so we will stop here. Thank you, Kavita ji, for reading so wonderfully for all of us. Thank you so much. Thank you. Yes, so let's do the gratitude and then we'll take some questions if we have. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for giving me this beautiful and wonderful life. Thank you for making me sleep peacefully every night. Thank you for waking me in the morning and giving me the joy of sight. Thank you for my amazing parents and my wonderful family. Thank you for showing me this path of gratitude. Thank you for Rhonda Byrne. Thank you, Ashmin ma'am. Thank you for all the people here in this group for adding positivity in my life. Thank you, thank you, thank you. Yes. So thank you, everyone. Any questions or sharings? How many of you are still writing good about that particular person? Okay, very nice. And how many of you are saying, yes, I can afford it, I can buy that? Me, ma'am. यस, वेरी गुड. एंड हाँ, वो तो सबको चाहिए, सबको पैसे तो चाहिए ही चाहिए, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. मैं इस पर्सन के लिए भी लिख रही हूँ, ऐसा नहीं खाली पैसों के लिए लिख रही हूँ. नहीं नहीं, आई सॉ दैट जस्ट मेकिंग लाइट. ओके, I do that magic one with 3 relationship को जो 1 minute visualization, I do that regularly for 3 वेरी नाइस श्वेता. ओके, वेरी नाइस. हो रहा है, मेरा टाइम ही नहीं होता, अभी दिवाली की सफाई चल रही है तो कोई बात नहीं, कभी भी करना है, बस इट्स लाइक 3 मिनट्स निकालने हैं, ओके, या जितना भी करना है, जस्ट डू व्हाटएवर यू फील इज लाइक द बेस्ट, आप वो करिए, ठीक है. जिस दिन वो सारा सेट हो जाता है ना, आई मीन सिर्फ एक ब्लेसिंग्स लिखने में ही टाइम लगता है, यू नो, बाकी और नहीं. उस दिन यू ऑटोमेटिकली वो फील गुड होता है. और जिस दिन जल्दी में सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखते हो, बाकी सब रह जाता है, तो लगता है यार कुछ मिसिंग है. हाँ, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड. Yeah, very good. See, when you are doing these things, you will only see the changes in your life. Okay? Like वो बोलने का है ही नहीं. You will be seeing the magics happening around you. जो भी dreams थे, क्या थे, वो सब धीरे धीरे फुलफिल हो जाएंगे. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है. आप हम लोग जो भी ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो हमको वो पॉइंट्स दे रहा है कि हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर लें. लेकिन वो हम लोग क्यों कर रहे हैं? फॉर आवर ड्रीम्स. क्योंकि मेन गोल है, राइट, मेन गोल इज द ड्रीम, नॉट टू सी बटरफ्लाई एंड रेनबोज, राइट. वो तो दिखे नहीं दिखे, इट्स अच्छा फीलिंग आ जाती है बस उस देर के लिए, बट एक्चुअल में क्या चाहिए हमको? वो ड्रीम चाहिए ना. आपको पार्टनर के संग वो रिलेशनशिप चाहिए, आपको अपना जॉब चाहिए, वो मनी चाहिए, आपको अपने वो हेल्थ में चाहिए. तो मेन चीज़ वही है, ठीक है. तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट इज माई इंटेंशन. ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है? टू अट्रैक्ट व्हाट वी एक्चुअली वांट. So all this is just adding to the positivity, all this is just adding to what you are wanting.
ठीक है, हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, हम अपने आप को मैग्नेट उतना स्ट्रांग बना रहे हैं, बट वो मैग्नेट क्यों स्ट्रांग बना रहे हैं? टू अट्रैक्ट व्हाट वी हैव एक्चुअली रिटन ऑन द फर्स्ट डे, कि आपकी जो 10 ड्रीम्स थी वो आपको चाहिए, आप इसीलिए ये वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप मैजिक वॉन्ड भी कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दैट ब्लेसिंग विल कम बैक टू यू इन सम वे और द अदर। ओके, Okay, is it okay, like, usually वो 3 blessings अगर फैमिली के लोग के लिए कर रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिपीटेटिवली, इट्स फाइन ना, एज या एन एकदम ठीक है, बट सी व्हेन यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, सी टू इट दैट इट शुड नॉट बिकम लाइक अ टास्क, वो थोड़ा मोनोटोनस नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना है कि वो जो फीलिंग आ रही है, ओके, वो अच्छी और पॉजिटिव होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे को ओवर अ टाइम करते करते जो आप कह रहे हो ना, फीलिंग ज्यादा आने लगी, लाइक पहले आई पुट अ स्टॉप वॉच, पहले क्या होता था 40 45 सेकेंड्स के बाद ही, मतलब आई विजुअलाइजेशन ओवर हो जाता था, मतलब द स्टोरी दैट आई बिल्ट कि हाँ दे आर टॉकिंग एंड दिस इज गुड एंड ऑल दैट, बट अब इट टेक्स मोर देन अ मिनट, बिकॉज मुझे लग रहा है अब करते करते ना मुझे ज्यादा फीलिंग आती है, एंड माय हस्बैंड सेज एट टाइम्स टू स्माइल आल्सो, बिकॉज आई क्लोज माय आईज एंड ऑल, so I usually say, please get out of the room, but sometimes he just peeps in. तो वो कहता है कि, and now like it's magic तो अपनी जगह पे है ही, all of us wants that magic, I also want, but otherwise ये छोटी छोटी चीजें ना, life in itself is very happy, and that is all we want. वो चीजें तो जो होंगी सो होंगी, but एक मैं हस्बैंड को बताने लगा, उसने बोला कि मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा, so he started, he took 2 notebook, एक में उसने ड्रीम लिखा है, एक में आज से स्टार्ट एक ब्लेसिंग्स लिखी है, Very nice, very and I was nice, like, Shweta. Amazing. More and more magic to you because what you are doing is amazing. देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको ही लाइफ में दिखेगा। ठीक है, सो आई एम मिसिंग मैजिक बुक बिकॉज उस मैजिक बुक करने से ना सब कुछ इतना रूटीन में रहता था। अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द सेशन आई एम फोकसिंग मोर ऑन द सीक्रेट, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब वापस से मैजिक बुक करेंगे, वापस से मोर मैजिक्स विल हैपन। यस, वेरी नाइस, मोर एंड मोर मैजिक टू यू, सीरियसली, थैंक thank you, यू। thank you. या यस यस, सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? नहीं, 2 क्वेश्चन। एक तो अभी जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो ये सनराइज का टाइम है ना 6:30 के अराउंड हो गया, तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम था वो अभी मेरे रेगुलर टाइम के साथ दोनों में ये हो रहा है। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, वो आप मुझे बताएं। दूसरा, रात को जब मैं सोती हूँ वो अपना मैजिक रॉक वाला जो होता है, मैजिक रॉक ही है ना, हाँ मैजिक रॉक, मैं बाय द टाइम आई रीच टू द बिगेस्ट व्हाटएवर हैपेंड इन द डे, मैं सो जाती हूँ। तो उसके अब लिए मैं क्या, ये दिस इज एन इजी क्वेश्चन, इसका हम बता देते हैं बिकॉज आई थिंक ये मेरे संग भी अक्सर होता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे ही 1-2 चीजें हुई ना, उसमें से हम थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देते थे। इनफैक्ट जो अच्छी लगती थी उन सब के लिए भी थैंक यू बोलते थे। तो क्या होता था, मेन क्या है कि आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, ग्रैटिट्यूड हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स लाइक इफ यू आर थिंकिंग ऑफ 3-4 थिंग्स एंड यू आर फॉलन अस्लीप, तो आपने 3-4 चीजों के लिए तो थैंक यू कर ही दिया है। एंड इफ यू हैवंट dozed off and you are still thinking कि yes सारी अच्छी थी, अब इसमें से बेस्ट ये वाली है, तो ऑल द मोर बेटर। ठीक है, ये हो गया। और ये ब्रह्म मुहूर्त वाला है, ये आपको अपने रूटीन में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त इज एक्चुअली आई थिंक 3 hours समथिंग बिफोर द सनराइज। या तो नाउ यू हैव टू सी हाउ यू 48 minutes before sunrise. नहीं, 38 मिनट्स पहले खत्म हो जाता है। नहीं हो नहीं जाता है नहीं, वो। 48 minutes ही रहता है। हाँ, और लेकिन उससे क्या होता है ना, वो मेरा डेली का रूटीन 7 o'clock जा करके खत्म होती है, और उससे पहले तो बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। तो अब मैं लेट लिखूं ब्लेसिंग्स तो चलेगा क्या? 7 o'clock के बाद लिखूं तो? देखिए, आइडियली वो उसको लिखना होता है व्हेन यू आर इन वेट लिटिल कर। ड्रॉपी स्टेट। ओके, इसलिए उसको बोला जाता है सुबेरे उठते ही लिख लो। बट अगर बहुत बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है तो ये भी बोलते हैं विद इन 2 hours लिख लेना चाहिए। But best is that you get up and write it immediately, or when you are in a little groggy state, जो होती है ना, थोड़ी सी नींद वाली स्टेट में लिखने से बेस्ट होता है। ठीक है, या Priya, a question है, like suppose like if we are working till around say 2 o'clock or maybe 30 in the morning ही हो गया वो तो 2:30 in the morning, so can I write blessings that time and sleep? बट उठ के लिखना अलग है, सोते टाइम तो आप लिख ही सकते हैं, वो कोई मना नहीं। वो जो सुबह So उठने वाला है, नया डे नहीं काउंट होगा, 2:30 नेक्स्ट डे नहीं काउंट होगा। ओह, वो नया डे नहीं, वो नया डे तब होता है जब हम लोग सो के उठते हैं। आप देखिए ना, यू विल गेट अप, यू विल ब्रश योर टीथ, यू विल गो टू द वॉशरूम, है ना? तो so ये आप करूँ 2 बजे उठूं, ब्रश कर लूं?
Now this winner is like a kiddish question, okay? This is like, that's why I say you are a good sport. You come up with some cute questions, and I also come up with some funny answers, and maybe be a little stern with you. It's like when you are awake from your sleep, that is the time. Okay, Yeah. that's what I was confused, because I was writing that time कि यार 2:30 बज गया, काम करते करते चलो blessings लिख के सो जाती हूँ. हाँ, देखो उसका भी कुछ अपना फायदा है, ठीक है, बट सुबह उठ के लाइक व्हेनेवर यू गेट अप, उसका एक अपना फायदा है. Okay, so if you are, if you are sleeping this late and you are writing before sleeping also, okay, and when you get up, at least you be in gratitude. You do your magic morning कि जो दिख रहा है उसको thank you, ये सब चीज के लिए thank you, and then when you get time, then you can sit down and write. I have something to add to for विंदर के क्वेश्चन में. ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्लेसिंग्स लिखने के बाद या मैजिकल प्रैक्टिसेस करने के बाद इट्स बेटर नॉट टू गो टू स्लीप. सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइजेबल कि आप सो करके उठो और उसके बाद अपनी ये रूटीन करो ताकि आप सोने ना जाओ वापस. कहते हैं ना पूजा करने के बाद सोना नहीं चाहिए, तो वो वाली चीज है. Even somebody else also told me that once you are doing all these meditations and everything, you should not sleep after that. See, that I'm not aware of. मेरे को ये पता है कि आप सोने के पहले जो वो हम लोग ग्रैटिट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, कितने जन बोलते हैं कि सोने के पहले यू कैन राइट योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो. ओके, तो ऐसा नहीं है कि रात में नहीं लिखना है, बट इट शुड बी कि आपको सुबह उठ के भी लिखना है. इट इज लाइक अ सैंडविच. ओके, सोने के पहले और सोने के बाद दोनों टाइम करना है. इट इज लाइक दैट योर स्लीप हैज टू बी इन बिटवीन द ब्लेसिंग्स एंड द ग्रैटिट्यूड. ऐसा होना है. इसीलिए आप देखिए सोने के पहले मैजिक रॉक बोलते हैं दैट व्हेन यू आर sleeping, उसके पहले you are sleeping in good thoughts, and when you are getting up, that time also you should be starting your day with blessings and feeling of positivity. Okay, got it. प्रिया जी, क्वेश्चन मेरे पास भी है. हाँ, प्रिया जी, एक्चुअली क्या रहा है, मेरे बेटे का बस आ जाता है. मेरे 2 बेटे हैं. छोटा वाला बेटा का बस 6:30 पे आता है, तो उसको तैयार करना, टिफिन बनाना वगैरह हो जाता है. मैं जनरली ऐसे 5 o'clock उठ जाती हूँ, मैंने सुबह टाइम नहीं मिल पाता कि मैं अपना ब्लेसिंग्स लिख सकूं, क्योंकि उसको बस स्टॉप वगैरह सब मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है. मैं आकर के जनरली लिखती हूँ. जैसे अपना बेटा को छोड़ करके मैं 7:30 8 o'clock के आसपास लिखती हूँ. बट अभी 2 दिन से क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ कुक भी नहीं है अभी, तो घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो जाता है, तो आजकल मेरा दिन भर में नहीं हो पाता. तो आजकल मैं सोने से पहले लिख रही हूँ अपनी ब्लेसिंग्स. व्हाट यू डू इज, अगर ऐसी बात तो मैं जैसे काम करते करते किचन में काम करते करते अपनी ब्लेसिंग्स को मुंह से बोल रही हूँ कि थैंक यू जो भी है, मुझे अपना जो भी चीजों के लिए उसके लिए मैं थैंक यू बोलती जा, पर लिख नहीं पा रही हूँ सुबेरे. ओके, तो अगर ऐसा है, रोज आपको हैबिट नहीं करना है ऐसा, बट व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू गो टू द लूप ऑन योर फोन, यू कैन डू दैट. ओके, आप फोन में लिख सकते हो. आप पॉट में बैठते होगे तो 3-4 मिनट तो बैठते ही हैं, उसी में आप फटाफट 10 ब्लेसिंग्स लिख दीजिए, ठीक है, या वॉइस रिकॉर्ड. मैं जनरली कॉपी में लिखती हूँ रेड पेन से, इसलिए मैंने पूछा. इमरजेंसी मतलब इट शुड नॉट बी एन एवरीडे अकरेंस, बट ऑन एंड ऑफ आप ऐसे कर सकते हो, बिकॉज जितना जल्दी सुबह आप करोगे उतना अच्छा है, ठीक है. मैं जनरली 5 o'clock उठ जाती हूँ, लेकिन बेटा का भी स्कूल है तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टिफिन भी बनाना होता है, छोटा सा उसको रेडी भी करना होता है. बिल्कुल एकदम ठीक बात है. फॉर दिस यू हैव टू सेट अ थिंग. तो हमने आपको बता दिया, यू कैन राइट इट इन द टॉयलेट ऑन योर फोन में, आप टाइप करके लिख सकते हो, ठीक है. बट इट शुड बी कि हर दिन नहीं हो. ब्लेसिंग्स लिखने में मे बी अगर आपको 10 मिनट्स लगते हैं तो ट्राई एंड गेट अप अर्ली, 10 मिनट्स जल्दी उठ के यू कैन डू दैट. ओके, बट सुबह लिखना इज बेस्ट. वो भी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने बोला पूछ लूं आपसे. ओके, आप देख लो व्हाटएवर यू फील, ठीक है. थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, ओके, सो आई थिंक लेट्स मीट टुमारो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस. ओके, यस, आई गेस सबके कैमरा ऑफ है, सो सब लोग जग ही रहे होंगे अभी, तो ठीक है. सो सी यू ऑल टुमारो. गुड नाइट. जाग ही रहे हैं प्रिया. नेट अभी कैमरा ऑन कर रही हूँ ना, तो फिर आपका आवाज नीचे से आ रहा है. मे बी okay. No, I'm just saying that yes, let's meet tomorrow and then we'll continue with this wonderful chapter and then Diwali ki tayari. Yes. So good night. See you all tomorrow. Good night. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Bye. Bye all. Thank you.